Hello students, in this part we will study about the microbes in सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स किस प्रकार से यूजफुल होते हैं. जस्ट वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट द माइक्रोब्स which help in production of biogas in the previous part, but in this part we will study microbes in sewage treatment. Microbes in sewage treatment. What is sewage या सीवेज किसे कहते हैं? You know that the waste water generated large quantity from cities, towns, and this large waste water contains many organic substances. The substance present in sewage is called, the waste water is called human excreta. This is called sewage. As we know that a large quantity of waste water generated from the town or cities in this waste water the main component is human excreta. इस वेस्ट वाटर के अंदर मैक्सिमम रूप से ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन होता है. दिस इज कॉल्ड सीवेज. दिस इज कॉल्ड सीवेज. What is waste water with any substance contained with human excreta, that is called sewage. The other substances such as organic substances and other waste also present in this sewage. इस सीवेज के अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और वेस्ट सब्सटेंसेस भी कंटेन होते हैं. we cannot dump this sewage into the directly into the water bodies. We cannot dump this sewage directly into the water bodies. Why? Because this waste water contains many pollutants, and that also mixed with water bodies, which can also pollute that water bodies, and there may be reduced amount of oxygen can take place, that is called eutrophication, and many aquatic life may die due to the eutrophication. The first one, we cannot dump this sewage directly into the water bodies. तो क्या करना पड़ता है? Thus, to treat this sewage, we taken to the sewage treatment plant. That is called STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इसलिए इस प्रकार का सीवेज जिसके अंदर 10 पार्टिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एज वेल एज ह्यूमन एक्सक्रीटा कंटेन होता है, उसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज में नहीं पोल्यूटेट कर सकते, मतलब डंप कर सकते. इसलिए क्या करना होता है, उसको इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ले जाते हैं, जिसको बोलते हैं STP, जो कि डिफरेंट स्टेप के द्वारा कंप्लीट किया जाता है. दिस इज कंप्लीटेड. कौन सा? STP completed in the following step. अलग अलग स्टेप होते हैं. फर्स्ट वन, प्राइमरी.
primary treatment. Primary treatment. Second one is secondary treatment. Secondary treatment. And last one is called tertiary treatment. Tertiary treatment. Before dump into the water bodies, we have to treat this sewage by the sewage treatment plant by the three following steps. These following steps are primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment. What is primary treatment? Primary treatment. What is primary treatment? First, we are दिस सीवेज वाटर, जो सीवेज वाटर जनरेटेड हुआ वेस्ट बॉडी वार्ड टाउन से सिटी से, इनको हम क्या करते हैं सीवेज के द्वारा वहां ले जाता है जहां पर सीवेज सिस्टम हो। उनको ले जाने के पश्चात सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्टली द सीवेज is taken to the sewage system by the चैनल बना के, कैनल बना करके, छोटी नालियां बना करके सीवेज के वाटर को पहले कहाँ ले जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है। और वहां ले जाने के पश्चात सबसे पहले इसकी दो प्रोसेस है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, दो प्रकार की प्रोसेस होती है, एक तो होती है फिल्ट्रेशन एंड सेकंड वन इज सेडिमेंटेशन। दिस इज completed by two steps. First is sequential filtration, या आप कह सकते हैं filtration, and second one is sedimentation. These are the two steps are completed to the primary treatment. First of all क्या करते हैं, ये हमारे चैनल के द्वारा जितना भी सीवेज है, चैनल के द्वारा इसको कहाँ ले जाता है, एसटीपी में। एसटीपी में टैंक बनाया जाता है। फर्स्टली टैंक, यहाँ पर जो सीवेज इसको लाया जाता है, यहाँ पर पहले इसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करने के लिए जाली लगा दी जाती है, नेट लगा, जिसमें से वाटर सीवेज होगा फिल्टर हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो लार्ज पार्टिकल्स वेस्ट सब्सटेंस जो यहाँ पर फिल्टर कर दिए जाते हैं, फिल्ट्रेशन किया जाता है। और फिल्ट्रेशन करने के पश्चात इस टैंक के अंदर वाटर को छोड़ दिया जाता है, अनडिस्टर्ब छोड़ जाता है। फर्स्ट वन इज द सीवेज वाटर इज टेकन टू द सीवेज सिस्टम थ्रू द चैनल। फर्स्टली ऑल द लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड थ्रू द सीवेज बाय द नेट कह सकते हैं, एंड देन दिस सीवेज इज पुट इनटू द टैंक। आफ्टर दैट दिस सीवेज इज पंप्ड आउट, इसको पंप आउट किया जाता है। पंप आउट करके इसको एक अलग चैनल में लेके जाते हैं। यहाँ चैनल के अंदर क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन, मतलब जो इसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्टोन पार्टिकल्स हैं, उनको सेडिमेंट को क्या कहते हैं, फिल्टर किया जाता है, रिमूव किया जाता है। इसको बोलते हैं ग्रिट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ फिल्ट्रेशन आप चेक करते हैं, फिल्ट्रेशन, व्हाट इज फिल्ट्रेशन? The sewage is filtered through the net. जाल से सीवेज को फिल्टर किया जाता है। Thus, the solid large particles are removed. First one. And the second one is sedimentation. Sedimentation means the stone particle, dust particle which comes into the sewage are removed through this sewage. Then the stone or dust particle are removed
from the sewage. This is called sedimentation. इस सेडिमेंटेशन करने के लिए क्या कहते हैं इसको, ग्रिड सिस्टम, एक चैनल के द्वारा पंप से पहले इसको टैंक से पंपिंग किया जाता है। पंपिंग करने के पश्चात इसको एक चैनल छोटी सी नाली बनाई जाती है, नाली के अंदर दो सिस्टम कर देते हैं। यहाँ पर भी फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर जाली लगाई होती है। इसमें से वाटर का जो फ्लो होगा बहुत ही स्लो कर देते हैं। स्लो करने के साथ वाटर का यहाँ फ्लो है वो स्लो है, फ्लो स्लो है यहाँ पर वाटर का, जिसके कारण से वाटर के साथ जो डस्ट पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल्स आए हैं वो स्लो फ्लो होने के कारण से जो डस्ट पार्टिकल है, स्टोन पार्टिकल है, वहां पर रुक जाते हैं। यहाँ से इसको फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। कहाँ? सेडिमेंटेशन से। सेडिमेंटेशन जहां होता है उसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम, यहां तक की जो ट्रीटमेंट है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, इसी ग्रिड सिस्टम के पश्चात इसको अलग टैंक में ले जाया जाता है जहां पर एरिनेशन यानी एयर इसमें मिक्स की जाती है। देन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। What is secondary treatment? The primary treated sewage is then taken to the other tank. तब इस प्राइमरी जो ट्रीटेड वाटर है इसको अलग टैंक में लेके जाया जाता है। अलग टैंक में ले जाने के पश्चात यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, O2 मिक्सिंग की जाती है। O2 जैसे ही मिक्सिंग करते हैं तो एरोबिक बैक्टीरिया लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्लो, यानी फ्लो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ माइक्रोज, एरोबिक माइक्रोज, दैट इज कॉल्ड फ्लो। वो क्या करते हैं, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल, जो पार्टिकल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट करते हैं एंड मिक्स या मिक्सिंग द ऑक्सीजन। प्राइमरी ट्रीटेड वाटर सीवेज को तब अदर टैंक में ले जाता है जहां पर ऑक्सीजन का मिक्सिंग किया जाता है। ड्यू टू द ऑक्सीजन अमाउंट प्रेजेंस, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रोब्स और बैक्टीरिया प्रोड्यूस, एरोबिक माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एंड स्टार्ट टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ, या आप कह सकते हैं, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज जैसे ही करते हैं एक्सेस अमाउंट ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। इस कारण से उस प्रकार के सीवेज के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट रिड्यूस हो जाती है एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन इन दैट सीवेज। देखिए आपने ऑक्सीजन मिलाई, ऑक्सीजन मिलाने के पश्चात एरोबिक माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो गए। जैसे ही एरोबिक माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं वो सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, डिकम्पोज करके मैक्सिमम को खा जाते हैं। और स्पेशली यहाँ पर इसे एक चीज और बोलते हैं इसको MBBR। MBBR मीन्स मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर, वो यही बनते हैं इस प्रकार से। तो जस्ट प्रोड्यूस करते हैं उस चीज में ऑक्सीजन ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने के कारण से ऑक्सीजन की अमाउंट लेस हो जाती है और लेस होने के कारण से यहाँ पर बोर्ड की कंडीशन मिलती है, बोर्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड and produce the board which we have already studied, board biological oxygen demand, यानी इस प्रकार के वाटर के अंदर ऑक्सीजन अमाउंट लेस हो जाती है। then this water is taken to the other tank, यानी कौन सा वाटर, जो
माइक्रोब्स ने जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर दिया, खत्म कर दिया, इस प्रकार का वाटर जहां ऑक्सीजन की अमाउंट लेस हो जाती है, इसको अदर टैंक में लिया जाता है, जहां पर जाकर इसको सेटल आउट किया जाता है। यानी देन दिस वाटर इज टेकन टू द अदर टैंक वेयर द सीवेज इज सेटल्ड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए सीवेज जो यहाँ पर जो उसके अंदर और सब्सटेंस बच गए वो सेटल डाउन, तली में सेटल डाउन हो जाए, जिसके कारण से अब हमारे यहाँ पर इसमें बैक्टीरिया जो है एक्सेस अमाउंट में है। तो क्या करते हैं, इससे कुछ बैक्टीरिया निकाल करके फिर दोबारा, क्योंकि बार बार प्रोड्यूस ना करने पड़े, इस बैक्टीरिया उठा करके दोबारा काम ले जाते हैं, फिर जैसे ही प्राइमरी से आता है उसी में फिर मिला देते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो एक्सेस अमाउंट में बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, इस प्रकार से सीवेज के अंदर से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने के पश्चात उसके साथ साथ एक रोल और भी है, यहाँ पर इसको एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं। यहाँ तक का जो आता है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। What is activated sludge? After the secondary treatment, the sewage is remained in a tank undisturbed for some time. This is called activated sludge. इस एक्टिवेटेड स्लज से फिर क्या करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में माइक्रोब्स लेकर के दोबारा वही ले जाते हैं जो प्राइमरी से आया था वहां पे, जिसके कारण से एक्सेस अमाउंट में माइक्रोब्स प्रोड्यूस हो और इसको ट्रीटेड कर दिया जाए। यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कुछ इस प्रकार से ऑक्सीजन में मिक्सअप किया, कंडीशन क्या होगी, बोर्ड, और बोर्ड वाले को फिर क्या लेते हैं, अलग टैंक के अंदर ले जाया जाता है। इसमें से जो सब्सटेंस हैं वो प्रोड्यूस गैस भी करते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स होते हैं इसमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बायोगैस। इट इज आल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल। एंड आफ्टर दैट दिस स्लज जो सीवेज बच गया इसको खेतों में फिल डाउन में इरिगेशन कर दिया जाता है। यहाँ तक का सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। यदि आपने टर्शरी ट्रीटमेंट और करना है तो ट्रीटमेंट क्या होता है कि जिसमें इस सीवेज का यूज हम डोमेस्टिक लेवल पे वाटर में कर सकते हैं। इसके पश्चात इस टैंक के वाटर को फिर क्या करते हैं, अदर टैंक में ले जाते हैं, जहां पर क्लोरीन, ओजोन, परकोलेटिंग, इस प्रकार के सब्सटेंस पास आउट किए जाते हैं और लास्ट में ऑक्सीजन मिक्सअप कर दी जाती है, जिसके कारण से ये सीवेज हमारा फिर डोमेस्टिक यूज के लिए एबल हो जाता है। दवा इज टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट if the sewage water या sewage is used at home, then the secondary treatment या secondary treated sewage is passed in another tank। इस सीवेज को तब दूसरे टैंक के अंदर वेयर या इन विच क्लोरीन, ओजोन एंड यूवी रेडिएशंस के साथ ताकि इसमें जो छोटे मोटे माइक्रोब्स है वो सारे के सारे मर जाएं, मिक्स विद ऑक्सीजन। एंड दिस वाटर इज यूज्ड एट होम। डोमेस्टिक लेवल पे इसका यूज कर सकते हैं। सो देयर आर 3 स्टेप्स which are involved in sewage treatment plant. This is the 3 methods. First one is sewage is taken to the sewage system where in which 3 process या 3 steps are involved, primary, secondary, tertiary। primary के अंदर only filtration, sedimentation। filtration में filter किया जाता है, उसके बाद sedimentation में ग्रिड सिस्टम में ले जाते हैं और ग्रिड सिस्टम के अंदर जैसे जैसे वाटर का फ्लो होता है बहुत स्लो कर दिया, जिसके कारण से उसमें डस्ट पार्टिकल, स्टोन पार्टिकल वो डिपोजिट हो जाते हैं, हटा दिए। यहाँ तक का जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट है। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो प्राइमरी का फिर सेकेंडरी अलग टैंक में जहाँ पर ऑक्सीजन मिक्सिंग की जाती है। ऑक्सीजन मिक्सअप में एरोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और देन इट टेक्स टू द अनदर टैंक जहाँ पर इसको कुछ समय के लिए सेटल कर दिया जाता है, जो इसके अंदर सब्सटेंस गैसेस बनती हैं, बायोगैस का यूज कर लेते हैं, अदरवाइज इसको फील्ड में यूज कर लिया। यदि आपने
इसी सीवेज का यूज डोमेस्टिक लेवल पे करना है तो इसका टर्शरी ट्रीटमेंट भी किया जाता है। क्लियर? इसी प्रकार सीवेजेस यानी ट्रीटेड करके, सीवेज ट्रीटेड करके इनको वाटर बॉडीज में डंप आउट कर देते। क्यों? यदि हम डायरेक्टली इसको वाटर बॉडी में डंप आउट कर देते विदाउट ट्रीटेड, देन इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन डिजोल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। यदि सीवेज जो हमारा सीधा घर से प्रोड्यूस हुआ उसको सीधा ही वाटर बॉडीज में मिक्स कर देंगे तो उसके कारण से क्या होगा कि वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट लेस हो जाती है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? Eutrophication. The dissolved amount of oxygen become less in water, that is called eutrophication. यदि हम डायरेक्टली सीवेज को वाटर बॉडीज में मिक्स कर देंगे, इस यूट्रोफिकेशन के कारण से एक्वेटिक लाइफ में डाई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो एक्वेटिक लाइफ जो है जैसे फिश वगैरह मर जाएंगी। इसलिए जब भी जितना भी सीवेज को ट्रीटेड करके वाटर बॉडीज में मिलाते हैं ताकि वाटर हमारा कम पॉल्यूटेड हो, इसीलिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इंडिया की जो है उन्होंने रिवर को बचाने के लिए 2 एक्शन प्लान लागू किया। गंगा एक्शन प्लान इन 1985 के अंदर, और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट started to protect the river water safe from pollutions. The action started कौन सा? First one is गंगा एक्शन प्लान इन 1985, और दूसरा है यमुना एक्शन प्लान, so that our river don't becomes polluted. This is the helpful beneficial effect of microbes in sewage treated plant.